Dear students, this is the last part of this chapter, chapter 17, the United Nations. Read the chapter again and again to understand this topic as well as know the word meaning also. Now, let us go for the remaining part of this chapter. Special agencies. Special agencies means United Nations have some agencies they have made. The different verticals are there, different small organizations are there which deals with the work of UN. Most of the works of the UN are carried out by the special agencies. So what type of work? They deal with the food aid, health, education, environment and agriculture. Okay, members countries pay for the work of these agencies. The richer the nation, the more it pays. Means every member countries pay the money to UN to get the work done by these agencies, and if the country is big and rich, then that country has to pay more. Okay, and the agencies are United Nations Children's Fund, UNICEF. You must have heard this name, UNICEF. You can see the ad also in the TV, like Child Relief and Fund, CRY, Child Relief and You. That is the CRY. It is one of the part of UNICEF. You can see ad. They ask for donation. So if you watch TV, you can see it. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. It deals with the education, science and culture of the countries. Okay, and in the short form it is called UNESCO. WHO, that is the World Health Organization. It takes care of the health, disease, prevention, giving license to the medicines worldwide, like the vaccination is going on for the corona. It takes care of it also. So it has lots of work with the health and disease. WHO, World Health Organization. Food and Agriculture Organization, that is, it deals with the food and agriculture of the nations. International Labour Organization, it deals with the laborers, mazdoor of the different nations. Now, let us discuss one by one. UNICEF, this is the logo of the UNICEF, responsible for the welfare of the children all over the world. It conducts programs especially in developing countries. It ensures that the food, health and educational needs of the children are met. Means, ये क्या करता है? ये बच्चों के बारे में सोचता है. डेवलपिंग कंट्री, जो कंट्री डेवलप कर रहे हैं, नॉट द डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, उसमें जो बच्चे हैं अंडर प्रिविलेज है, गरीब हैं, बीमार हैं, उनकी पढ़ाई, उनकी एजुकेशन, उनका खाना पीना, इन सब के बारे में ये देखता है. ओके, यूनेस्को, established by the UN in 1946, its aim to encourage the nations work together in the areas of education, science and culture. पढ़ाई के बारे में, साइंटिफिक डेवलपमेंट के बारे में, रिलेटेड टू साइंस एंड कल्चर, इन सब के बारे में ये ऑब्जर्व करता है और एक काम करता है. एजुकेट द पीपल अबाउट हेल्थ, फार्मिंग, एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग, फार्मिंग का ट्रेनिंग, किस तरह से काम होना चाहिए, सीड्स का, फर्टिलाइजर्स के बारे में, हर चीज़ के बारे में ये ध्यान देता है अमॉन्ग द डेवलपिंग कंट्रीज, जो कंट्री डेवलप कर रहे हैं. ओके, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक, culture and organization. This is the logo of your UNESCO. Now, next is World Health Organization, established in 1948. Its aim is to improve health of the people worldwide. Provides training to the health workers to fight against the disease. Promotes research. ठीक है, मेडिकल साइंसेस में कहाँ क्या रिसर्च होना है वो देखता है. अभी जैसे कोरोना वायरस जो चाइना से आया, वुहान सिटी से आया, तो WHO इज डूइंग द इंस्पेक्शन. द टीम ऑफ WHO वेंट टू वुहान टू चेक क्या सच में वायरस वहीं से आया था. सो दे आर वर्किंग अपॉन इट. ओके, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, मेन एम इज फ्रीडम फ्रॉम हंगर, मतलब लोगों को भूखमरी से बचाना, भूख से बचाना. दैट इज द सप्लाई ऑफ फूड. हेल्प्स नेशन टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन. ये एग्रीकल्चर में हेल्प करता है, फूड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जिससे कि उस कंट्री में खाने की कमी नहीं हो. ठीक है. वॉन्ट्स ऑफ फूड स्टोरेज एंड ऑरेंज फूड फॉर पीपल सफरिंग.
कहीं कहीं अकाल हो जाता है, हमने ड्रॉट पढ़ा था, कहीं फ्लड आ जाता है, तो खाना कहाँ से आएगा? फ्लड आ गया तो भी एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगा, ड्रॉट आ गया तो भी एग्रीकल्चर खत्म हो जाता है। तो फॉर दैट दे वांट द फूड शॉर्टेज। तो फिर वो लोग देखते हैं कि किस कंट्री में खाने की कमी होगी, तो फिर वो इम्पोर्ट करके उस कंट्री में खाना पहुंचाते हैं। ओके, International Labour Organization, the aim of ILO is to improve the working condition and living standard of the working class. तो जो मजदूर होते हैं उनका एक सर्टेन रूल्स बना हुआ है, लेबर लॉज बने हुए हैं, हर फैक्ट्री के पास अपना एक लेबर लॉ होता है। ये भी इंटरनेशनल लेबर लॉ यूनाइटेड नेशन की तरफ से आता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन कंट्री टू कंट्री, तो हर कंट्री के पास अपना एक लेबर लॉ है। ओके, तो फैक्ट्रीज में लोग कैसे काम करते हैं, कितने घंटे काम करना चाहिए उनको, वीक के कितने घंटे लोग काम करेंगे, ये सारी चीजें डिफाइन की जाती है। मीन्स पर डे 8 आवर्स वर्किंग होना चाहिए। तो 5 डेज वर्किंग में 5 डेज वर्किंग माना जाता है। सो 40 आवर्स हफ्ते में काम करना चाहिए, बट इंडिया में अभी भी इट इज 48 आवर्स की वर्किंग है। बट इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, इन द डेवलप्ड कंट्रीज, हर जगह 40 आवर्स की वर्किंग है। ओनली इन इंडिया, most of the part of the India that people are developing now, they have started working upon it. So there is the 40 hours working should be there in a week. तो ये सारे लेबर लॉज ये लोग बनाते हैं। फाइन, नाउ दीज आर द लोगो, WHO का लोगो, इसका FAO का एंड ILO का, ये सारे लोगोज हैं इनके जो हम देखते हैं हमेशा। ओके, नाउ द एम अचीवमेंट ऑफ द UN ने क्या क्या अचीव किया है इन लास्ट हाउ मेनी ईयर्स? 46 में स्टैब्लिश हुआ था, उसके बाद से अभी तक क्या क्या इन लोगों ने किया है। तो बिकम सक्सेसफुल, UN बिकम सक्सेसफुल टू प्रिवेंट वॉर्स बिटवीन द कंट्रीज टू ग्रेट एक्सटेंट। लड़ाइयाँ बंद हो गई, बहुत सारी लड़ाइयाँ बंद हो गई जो बहुत बुरा हो सकता था। अभी भी कुछ लड़ाइयाँ हुई थी, लाइक वॉर्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी। कब हुई थी? 71 में हुई थी, 72 में सॉरी। उसके बाद फिर कारगिल वॉर हुआ। तो ये सब चीजें को बंद करने में इसने अपना रोल निभाया। ईरान एंड इराक की लड़ाई बहुत लंबी चली थी। इजराइल एंड पैलेस्टीन की लड़ाई, इजराइल एंड पैलेस्टीन की लड़ाई, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया एंड मेनी अदर्स वेर नॉट अलाउड टू ग्रो बिगर। इन लोगों को किसी तरह इन लोगों को कंट्रोल करके वॉर को बंद कराया गया। एंड इट हैज ऑल्सो प्लेड रोल इन आर्म्स कंट्रोल एंड स्पेशली द न्यूक्लियर वेपन। आर्म्स कंट्रोल मतलब जो लड़ाई में जो आर्म्स यूज होते हैं, ठीक है, AK-47 सुना होगा बहुत, राइफल, दीज दैट, इन सब चीज़ों पे कंट्रोल किया कि हर कंट्री का अपना एक लिमिट हो, उससे ज़्यादा वो ना बनाए। एंड स्पेशली न्यूक्लियर वेपन मीन्स एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, इसके ऊपर में लाइक जब इंडिया ने पोखरण में उसका न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया था, एट दैट टाइम ऑल्सो दे वर वॉचिंग अस। ओके, so they have controlled this production of nuclear weapon also. Successful in fighting poverty, disease and illiteracy. And successfully they are fighting against that poverty, गरीबी हटा रहे हैं, बीमारियों का इलाज करवा रहे हैं, and illiteracy means people को educate करना है। illiteracy मतलब क्या बोलते हैं illiteracy को? literate and illiterate बोलते हैं ना, निरक्षर, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना लिखना आना। तो they are helping the people for their education also. इम्प्रूव द कल्चरल कोऑपरेशन अमॉन्ग द कंट्रीज, मतलब एक दूसरे कंट्री के साथ कल्चर शेयर करना, कल्चर को आगे बढ़ाना, इस पे भी ये लोग काम कर रहे हैं। बट देयर आर सम क्वेश्चंस रेज्ड बाय द डेवलपिंग कंट्रीज, इनके काम पे क्वेश्चन मार्क लगा है। लाइक कुड नॉट प्रिवेंट इन्वेशन ऑफ इराक बाय अमेरिकन लेड आर्म फोर्स इन 2003। इराक और ईरान की जब लड़ाई हो रही थी उस समय अमेरिका ने अपना फोर्स भेजा था एज ए सपोर्ट में, तो इराक में घुसे थे, ये इन लोग को नहीं रोक पाया था। अमेरिका का जो इन्वेस्टमेंट था अमेरिका आर्म फोर्स का, उसको इन्होंने नहीं रोक पाए थे। सिमिलरली वॉर ऑफ सूडान वाज नॉट स्टॉप्ड, इसको भी नहीं किया। और दूसरा एक सबसे बड़ा चीज था वीटो पावर एंजॉयड बाय 5 परमानेंट मेंबर्स। कौन कौन से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं? USA, UK, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। ये पांचों जो परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के। सो द डेवलपिंग कंट्रीज आर पुटिंग क्वेश्चन मार्क ऑन दैट, because like India is trying to become the permanent member of Security Council, but China is not giving its vote. China हमेशा अपना वीटो पावर यूज करता है और इंडिया को बनने नहीं दे रहा है परमानेंट मेंबर। बट इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री एंड इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ठीक है, और इतना डेवलप कर रहा है। और इंडिया का परमानेंट मेंबर होने के बाद अगर इंडिया परमानेंट मेंबर होती है UN की सिक्योरिटी काउंसिल की, तो
इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई एंड इंडिया एंड चाइना का जो चल रहा है ब्रॉडर डिस्प्यूट एंड लड़ाइयाँ जो और टेररिज्म वगैरह, इन सब चीजों पे कंट्रोल आ सकता है. बट चाइना इज नॉट गिविंग इट्स वोट. इंडिया को बनने नहीं दे रहा है कि अगर इंडिया बन गया सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर तो चाइना का बहुत सारा जो वो अपना पावर यूज कर रहा है ना वो सब खत्म हो जाएगा. दैट्स व्हाई दिस इज द क्वेश्चन मार्क ऑन यूएन. व्हाई देयर इज ओनली द 5 permanent members are enjoying that veto power. क्यों सिर्फ उस पांच कंट्रीज के पास है? Why other countries are not becoming the other developing or developed countries? हमारे कंट्री डेवलपिंग है बट इट्स द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. हमारे कंट्री के पास बहुत कुछ है बट व्हाई दैट these countries are not becoming the permanent members? तो ये सारे क्वेश्चंस हैं यूएन के वर्किंग पे. ओके, so now this is all about the chapter. I have not taken the last part, that is the role of India, that we will read later on. मैं इसको बाद में कभी पढ़ा दूंगी. But this much is about this chapter. Read the chapter for tomorrow's test. Okay. Thank you.